کراچی کا عالم مجاہد اہل سنت پہلوان مصطفیٰ حضرت علامہ مولانا محمد اکرم سعیدی صاحب جن کے گزارش کروں تھا کہ سائیں جن پنجے نورانی بیان سا کمائی اساندے دل کے مستفیض کو فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. اللہم رب زدنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا ودعاء مستجابا. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ ومدہر لطفہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. ہزار بار بشویم دہن ز مشک گلاب، ہزار بار بشویم دہن ز مشک گلاب. ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بھیک در در دے. کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بھیک در در دے. میرے مولا تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے. اللہ اللہ کرتے کرتے ہو نظر آیا مجھے. اللہ اللہ کرتے کرتے ہو نظر آیا مجھے. اور ہوں میں جب میں گم ہوا تو نظر آیا مجھے. ہوں میں جب میں گم ہوا تو نظر آیا مجھے. صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہو جلال محمد است. عثمان شمع ضیائے جمال محمد است. حیدر بہار باغے خصال محمد است. اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین. ایمان ما محمد آل محمد، ایمان ما محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے جو کل کائنات کا خالق اور تمام مخلوقات کا پالنہار ہے. نہ اس کا کوئی مشیر ہے، نہ اس کا کوئی صلاحکار ہے. تمام مخلوق اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں. بے شمار درود و سلام اس پاک ہستی پر جو محبوب رب العالمین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات پر بعد حمد و صلاۃ و سلام پیر طریقت، رہبر شریعت، آفتاب ولایت، مخزن اسرار رموز حقیقت و معرفت، غوث زمان حضرت قبلہ پیر سید محمد شاہ جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ، پیر طریقت، رہبر شریعت، آفتاب ولایت حضرت قبلہ پیر سید احمد شاہ صاحب جیلانی دامت برکاتہم القدسیہ رحمت اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ. میرے موسر، میرے مشرق حضرت قبلہ پیر طریقت سائیں منیر احمد شاہ صاحب ذاکری جیلانی دامت برکاتہم القدسیہ، معزز علماء کرام، حاضرین و ناظرین، پردہ نشین باشرم بابھرم، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ملت اسلامیہ کے غیور مسلمان بھائیوں،
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं साईं का और इस दरगाह के मुंतज़मीन व खुदाम का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने इस आजिज गुनाहगार बदकार स्याहकार ज़लील हकीर को इस पाक और खूबसूरत महफिल में हाजिरी की दावत दी। आपके मुकद्दर पेश करता हूं, कुदरत ने आपको आपके सदके इस आजिज को इस पाक महफिल में हाजिरी की तौफीक अता फरमाई। बयान करने के लिए इल्म चाहिए, इल्म के लिए अकल चाहिए और बयान में तासीर के लिए अमल चाहिए। इस आजिज के पास ना इल्म है, ना अकल है, ना अमल है, बस राह इश्क का मुसाफिर हूं और मंजिल मेरी बरास्ता बगदाद मदीना शरीफ है। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, आका तूने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों, कुरान मजीद के दूसरे पारे सूरह बकरा शरीफ की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। दुआ फरमाए अल्लाह करीम व तुफैल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे हक और सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए। हम सबको हक सुनने, हक समझने और हक समझकर हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम का इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ऐ मोहब्बत वालो, ऐ इश्क वालो, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने वालों, इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, मदद मांगो सब्र और नमाज से। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। साहिबान इल्म कसीर तादाद में मौजूद है, इनके कदमों पे हाथ रख के और साहिबान नजर के कदमों को चूम के कुरान और हदीस के समंदर से चंद मोती चुन के आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। दुआ फरमाए अल्लाह मेरी आपकी हाजिरी कबूल फरमाए। अल्लाह करीम हम सब की झोलियां अपनी रहमत से भर दे। हम सवाली बन के आए हैं, मांगते बन के आए हैं, भिखारी बन के आए हैं। ऐ अल्लाह इन कामिल बंदों के सदके सबकी झोलियां अपनी रहमत से भर दे, सबकी दिली मुरादें पूरी फरमा दे। रात मोहतरम, अल्लाह करीम का इरशाद या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, सारे बुलंद आवाज से कह दो ऐ, जोर से बोलो ऐ, ऊंची आवाज से कह दो ऐ। जिन्होंने सरफ और नाम के चंद असबाक पढ़े हैं वो जानते हैं कि हुरूफ मुनादा गायब और हाजिर के लिए इस्तेमाल होते हैं, कुर्ब और बहुत के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो मक्का और मदीना में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम, वो भी ईमान वाले। 14 सदियां गुजर गई, सारे मोहब्बत वाले ईमान वाले जो मौजूद है वो भी ईमान वाले और जो कयामत तक आएंगे वो भी ईमान वाले। अल्लाह ने उनको भी या कहा, अल्लाह ने मौजूदा इस कायनात में बसने वाले अहले मोहब्बत को भी या कहकर पुकारा और जो कयामत तक आने वाले हैं उन्हें भी क्या कहा। पता चला कि या कोट और कोट दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। अगर कोई ये कहे कि या सिर्फ हाजिर के लिए है, समझ लेना वो जाहिल नहीं है बल्कि इंटरनेशनल जाहिल है। इंटरनेशनल, उस बेचारे को पता ही नहीं है इल्म किसको कहते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों, कुरान समझने के लिए भी इश्क रसूल चाहिए, मोहब्बत रसूल चाहिए, अल्लाह के कामिल बंदों की निगाह चाहिए। जब अल्लाह के कामिल बंदों की निगाह होती है, फिर जब कुरान पे नजर डालते हैं तो कुरान का हर हर्फ सीना मुस्तफा से निकलकर मेरे नबी के लबों को चूम कर अल्लाह का नूर अदा करता हुआ नजर आता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फरमाया ऐ ईमान वाले,
اے ایمان والو، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس سے مبارک میں آنے والوں، اللہ کریم نے قرآن مجید میں کہیں فرمایا یا آدم، یا عیسیٰ، یا یحییٰ، یا زکریا، یا داؤد، یا سلیمان، اللہ نے جو پیغمبر اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما چکے تھے ان کو بھی یا کہا، اور اپنے محبوب کو بھی فرمایا یا ایھا النبی۔ اور قیامت تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، یا آدم بھی کہتے رہیں گے، یا عیسیٰ بھی کہتے رہیں گے، یا یحییٰ بھی کہتے رہیں گے، یا زکریا بھی پڑھتے رہیں گے، یا داؤد بھی پڑھتے رہیں گے علیہم السلام۔ پر مجھے دکھ ہوتا ہے کہ یا عیسیٰ کہو تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں، یا موسیٰ کہو کسی کو کوئی دکھ نہیں، یا یحییٰ کہو کسی کو کوئی اعتراض نہیں، یا رسول اللہ کہو تو منا کے پیٹ میں درد شروع ہو۔ اللہ اکبر، کٹ وقت کے کہہ دو یا رسول، اور زور سے کہہ دو۔ اللہ آپ کو حضور کا دیدار کرائے، بلند آواز سے کہہ دو یا رسول۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ دنیا کی تمام ایجنسیاں، تمام انٹیلیجنس ادارے اور دنیا کی تمام ذرائع ابلاغ اس حقیقت کو مان چکے ہیں، اگر دنیا میں کوئی امن والا ہے تو وہ یا رسول اللہ۔ آپ امریکہ چلے جاؤ، لندن چلے جاؤ، دنیا کے کسی کونے میں جب وہ دیکھتے ہیں یا رسول اللہ والا ہے تو کہتے ہیں جاؤ تم تو امن والے ہو۔ امن۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، ذرا بلند آواز سے محبت سے کہہ دو یا رسول اللہ، اور زور سے کہہ دو، اور سینے کا زور لگا کے کہہ دو۔ جن کو اماں نے درود کی لوریاں دے کے دودھ پلایا ہے، ذرا زور سے کہہ دو یا رسول اللہ۔ قدمت پہ کہہ دو، اونچی آواز سے کہہ دو، ہماری درگاہوں سے، ہمارے آستانوں سے، ہماری مساجد سے جہاں اللہ والے قدم رکھتے ہیں وہاں سے قبلہ بارود کی بو نہیں آتی، محبت رسول کی خوشبو۔ کیوں؟ ہم بارود والے نہیں، ہم درود والے ہیں۔ ہم بم والے نہیں، ہم دم والے ہیں۔ ہم فساد والے نہیں، ہم میلاد والے ہیں۔ اور ہم شرارت والے نہیں، ہم تو شریعت والے ہیں۔ دنیا آج اس حقیقت کو تسلیم کر چکی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا، مدد مانگو۔ مدد اس وقت مانگی جاتی ہے جب کوئی مشکل ہوتی ہے۔ بولو کیا ہوتی ہے؟ مشکل۔ آل رسول کے قدموں کو چوم کر، اللہ والوں کے قدموں کو ہاتھ لگا کر، اولیاء کرام کے دروازے کا سوالی بن کر، اللہ اکبر، ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں، آپ جیسے نیک لوگوں پر اگر کوئی مصیبت آ جائے تو یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ کیا ہے؟ امتحان۔ اور میرے جیسے گناہگار پر کوئی مصیبت آ جائے تو یہ میرے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، نہیں کوئی مصیبت آتی مگر وہ جو تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ سجدے کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، زکات دینے والے، صدقہ خیرات کرنے والے، اولیاء اللہ کے جوتے سیدھے کرنے والے، علماء کے جناب سامنے زانو تنمد حاصل کرنے والے، علماء کا ادب کرنے والے، اگر کوئی مصیبت آ جائے تو سمجھ لینا یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ بولو کیا ہے؟ شاباش، زور سے بولو اور محبت سے کہہ دو، یہ کیا ہے؟ امتحان ہے۔ ایک چور ہے، ایک برا ہے، بدکار ہے، سیاہکار ہے، اس پر مصیبت آ جائے تو یہ اس کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو، اگر کوئی مصیبت آئے تو پھر کس سے مدد مانگو؟ نماز سے اور صبر سے، نماز سے اور صبر سے۔ یا اللہ، اگر نماز اور مدد سے صبر مانگیں تو ملے گا کیا؟ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ، یہ صابرین کون ہے؟ ایک طرف ظالمین ہے، ایک طرف صابرین ہے۔
सामईन, कोई थप्पड़ मारे तो दुआ देते हैं, कोई जुल्म करे तो अल्लाह से रहम की भीख मांगते हैं। अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शहजादी के घर में तशरीफ लाए। सैयदा के घर में कई दिन से खाना नहीं पका, चूल्हा नहीं जला। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर गए यहूदी के खेतों में। यहूदी से फरमाया, तुझे मजदूर चाहिए? बोला हाँ। तो फरमाया, मैं मजदूरी करने के लिए तैयार हूं। ऐसा करो, मेरे इस कुएं में से पानी निकाल के जमीन को सैराब करो। कौनैन के वाली, रहमतुल लिल आलमीन आका, ताजदार खत्म नबूवत, इमाम अंबिया वल मुरसलीन, शाफे महशर पानी निकाल रहे हैं, जमीन को सैराब कर रहे हैं। अचानक रस्सी टूट जाती है, डोल गिर जाता है। यहूदी आकर मेरे नबी के चेहरे मुबारक पे थप्पड़ मार देते। मेरे आका आसमान की तरफ देखते हैं, कहते हैं, या अल्लाह, जैसे तू राजी है वैसे मैं मोहम्मद राजी हूं। फरमाया, यहूदी मारता क्यों है, जुल्म क्यों करता है? बोला, रस्सी तोड़ दी, डोल पानी में गिरा दिया। मेरे आका ने नीचे देखा तो पानी बाहर आकर मेरे नबी के कदमों को चूमने लग गया। डोल निकाला, फरमाया, अपना डोल पकड़। जब यहूदी ने देखा कि मैंने जुल्म किया है, मैंने ज्यादती की है, तो यहूदी अपने घर में गया। दिन को चैन नहीं आया। सैयद के तड्डे पे आने वालों, अल्लाह के कामिल बंदों के उनसे मुबारक में और जिक्र हुसैन की महफिल में आने वालों, सारी रात यहूदी सोया नहीं। सुबह उठा, जमीर की अदालत में इस्तिगासा पेश किया। कहा, जो हाथ अल्लाह के नबी के चेहरे मुबारक पे लगा है उसको रहने का कोई हक नहीं है। पेशा उठाया, टोका उठाया, हाथ काटा। काटने के बाद फिर सोचा फेंकना नहीं चाहिए, तश्त में रखा, कपड़ा ऊपर रखा, कटे हुए हाथ पे कपड़ा बांधा, मेरे नबी के दरवाजे पे आ गया। दस्तक दी, मेरे आका ने फरमाया, कोई और जुल्म करना है? कहता है, हुजूर माफ कर दो, जो हाथ आपके चेहरा मुबारक पर लगा मैंने काट के फेंक दिया है। मेरे नबी ने जब देखा तो कटा हुआ हाथ लगाया, दुआ में दहन लगाया, अल्लाह से दुआ मांगी, मौला इनके हाथ को ठीक कर दे। ऊंची आवाज से कह दो, सुभान अल्लाह, इसके हाथ को ठीक कर दे। आया था तो कटा हुआ हाथ है, जा रहा है तो जुबान पर मेरे नबी का कलमा पढ़ता हुआ जा रहा है। अल्लाह अकबर। साबिर कौन होते हैं? जो अल्लाह की रजा पे राजी होते हैं। वो अल्लाह की रजा पे हर वक्त कहते हैं, या अल्लाह जैसे तू राजी वैसे मैं राजी। एक मिसाल और देके अपनी बात आगे बढ़ाता हूं। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों, एक अल्लाह का बंदा जा रहा है, जूता टूटा हुआ है, बारिश आई है, गली में कीचड़ है, अपनी मस्ती में मस्त है। अल्लाह 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 अल्लाह, सारे कह दो, ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के जिक्र की मस्ती में जाओ। आगे कंजरी और कंजर ताइफा उसका यार आ रहे, कीचड़ उड़ा, छींटे उड़े, कंजरी के कपड़ों पे पड़े। तो कंजरी ताइफा अपने यार को कहती है, देख इसने मेरे कपड़े खराब कर दिए। उसने मारा थप्पड़ फकीर के मुंह पर, फकीर दूर जा गिरा और उठ के कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहता है? सारे कह दो, और जोर से कह दो, ऊंची आवाज से कह दो। कोई जुल्म करे तो क्या कहना चाहिए? कोई ज्यादती करे तो क्या कहना चाहिए? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आगे गया, एक चौक में दूध की दुकान है, मलाई वाला दूध। मालिक ने नौकर को बुलाया, प्याला दूध का भरा, मलाई डाली। बोला, बेटा वो फकीर बैठा है उसको दे गया। फकीर ने दूध पिया, आसमान की तरफ देखा, वाह मालिक, कहीं थप्पड़ खिलाता है कहीं दूध पिलाता है। तू मालिक है? बोलो तू, कहते बोलो तू मालिक है। जैसे तू राजी वैसे मैं।
थोड़ी देर गुजरी, शोर बपा हो गया, लोग दौड़ते हुए आए, फकीर के पांव दबा रहे हैं, कोई कमर दबा रहा है, कोई जनाब हाथ बांध के खड़ा है, कोई मिठाई ला रहा है, कोई नजराने दे रहा है, कोई खिदमत कर रहा है। फकीर ने कहा बाबा क्या बात है? साहब आप तो अल्लाह के बड़े कामिल बंदे हो। क्यों? आपको जिसने थप्पड़ मारा था ना, वो मकान की छत पे जाने लगा, गिरा, उसकी टांगें टूट गई, ये आपकी बद्दुआ है। फरमाया अल्लाह वाले कभी बद्दुआ नहीं देते। कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले कभी बद्दुआ नहीं देते। तो साईं फिर उसकी टांगें क्यों टूटी? आपने फरमाया उस गंदरी के दोस्त को, ताइफा के दोस्त को, गंदी औरत के दोस्त को गैरत आई, उसने मुझे थप्पड़ मार दिया, मेरे दोस्त को गैरत आई, टांगें तोड़ के रख। ये मामला तो दोस्तों का है। किसका है? दोस्तों का है। तो मोमिन वो होता है जो हर मुसीबत में सबर का दामन थामता है और कहते हैं या अल्लाह जैसे तू राजी वैसे। ऊंची आवाज से कह दो। आपने देखा इंतकाम लेने वालों के पैसे बर्बाद होते हैं, जमीनें बिक जाती हैं, खानदान तबाह होते हैं, नस्लें तबाह होती हैं। अल्लाह करीम फरमाता है मैं सब्र करने वालों के साथ हूं। सब्र करने वाले कौन होते हैं? कह दो साबिर। कौन? जरा ऊंची आवाज से और गलत के बोलो। साबिर। अपनी जात का मामला हो तो साबिर बनो, दुनिया का मामला हो तो साबिर बनो, कोई ज्यादती करे तो साबिर बनो। बात आ जाए ना मुंह से विलायत की, बात आ जाए ना मुंह से सहाबा की, बात आ जाए ना मुंह से रिसालत की, फिर बच्चे भी कुर्बान कर दो तो मदीने वाला राजी। अब मैं अपने मौजू को दो जुमलों में कह रहा हूं कि अगर 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 खानदान में, बिरादरी में, उम्मत मुस्लिमा में इंतशार और इफ्तिराक पैदा होने लगे तो फिर इमाम हसन का किरदार अदा करो। इमाम हसन कुर्बानी दो, और अगर अल्लाह के दीन को कोई नुकसान देने लगे तो फिर इमाम हुसैन का किरदार अदा करो। इमाम हुसैन, मेरे आका ने फरमाया ये मेरा बच्चा हसन मेरी उम्मत के दो गिरोहों में इत्तेहाद पैदा करेगा। जब बात आ जाए कौम के शिराजे की, उम्मत के शिराजे की, तो फिर आओ तिरमिज़ी शरीफ की हदीस सुनो। मेरे आका फरमाते हैं अगर तुम्हें अपने आप को झुकना पड़े, इतना झुका दो, इतना झुका दो, इतना झुका दो, अपनी नाक भी जमीन पे रगड़ लो। कौम के अंदर, बिरादरी के अंदर, उम्मत मुस्लिमा के अंदर इत्तेहाद पैदा करो। कयामत के दिन मैं मोहम्मद तुम्हें इज्जत अता करूंगा। से कह दो। आज तोड़ने वाले बहुत हैं, फिरकावारियत फैलाने वाले बहुत हैं, खानदानों में इंतकाम का जज्बा पैदा करने वाले बहुत हैं, तुम्हें गलत मशवरा देने वाले बहुत हैं। अल्लाह वालों के तड्डे पे आया है तो कुछ लेके जा। एक अल्लाह के कामिल बंदे को किसी ने कैंची दी तोहफे में, आपने कैंची ली और चूमा वापस कर दिया। फरमाया बेटा कैंची दे दो, मुझे सुई दे दो। साईं कैंची कीमती है, सुई की तो कोई कीमत ही नहीं है। फरमाया कैंची काटने का, जुदा करने का काम करती है, सुई जोड़ने का काम करती है। शाह बिटाई घोट रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पे जाओ, लाल शाहबाज कलंदर जाओ, सदरुद्दीन बादशाह जाओ, सच्चन सरमस जाओ, अल्लाह के कामिल बंदों के चौखट पे जाओ। अल्लाह अकबर दरगाह जाकिरी शरीफ पे आने वालों, अब तो सुभान अल्लाह। मैं देख रहा हूं हर जबान बोलने वाला मेरे नबी के इश्क में बैठा हुआ, हर जुबान बोलने वाला अल्लाह अकबर। कोई निशानियत नहीं, कोई असलियत नहीं, कोई फिरकावारियत नहीं, जो भी आया है मदीने वाले घोट का गुलाम बन के आया, मुर्शिद के दर का गधा बन के आया है। आज मेरी बात दिल पे नक्श कर लो। अल्लाह अकबर। बाप सबका सोना है, बोलो बाप सबका, बाप सबका, वालिद सबका सोना है, पर अपने बाप जैसा कोई नहीं।
मुर्शिद सबके सोने हैं, पर अपने मुर्शिद जैसा कोई नहीं, अपने मुर्शिद जैसा कोई नहीं। अल्लाह अकबर। किबला पीर मेहर अली शाह गोलवी की एक बात मुझे याद आ गई। एक साल पीर मेहर अली शाह गोलवी अपने मुर्शिद के उर्स में न जा सके, कोई मजबूरी थी। दूसरा साल आया, शहजादों को लिया, उर्स मुबारक रश्ता, हजारों अशकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। एक कोने में साईं अपने शहजादों को लेके बैठ गए। रात के 3 बजे तब बाकी लंगर पकाने वाला लांगरी मुर्शिद करीम की बारगाह में आया। साईं, मैं आटा गूंद रहा था, कुत्ता आया है, आटा खा के चला गया है। एक जगह, 2 जगह, 3 जगह से साईं हुक्म दे सारा आटा जाए कर दो, या जहां से कुत्ते ने खाया है वहां से निकाल दो। फरमाया, मैं मौलवी नहीं हूं, ये अल्लाह वालों की आजिज़ी है। अकरम सईदी किताबें पढ़ के आता है, कामिल बंदा बद्दुआ का मुखड़ा देख के आता है, हजूर का चेहरा देख कर बात करता है। अल्लाह अकबर। फरमाया, मैं मौलवी नहीं हूं, मैं आलिम नहीं हूं, मैं मुफ्ती नहीं हूं। मेहर अली शाह बैठा है, उससे फतवा लेके आ गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तब आखिर नांगरी दौड़ता हुआ गया पीर मेहर अली शाह गोलवी के सामने, हाथ बांधे। साईं, मैं आटा गूंद रहा था, कुत्ता आया, 2-3 जगहों से आटा खा लिया। शरीयत क्या कहती है, अल्लाह रसूल का क्या हुक्म है, मुझे फतवा दो। सारा आटा जाया करो या जहां से कुत्ते ने खाया वहां से निकालो। फरमाया, जहां से कुत्ते ने खाया है ना, वो आटा निकाल के मेरी और मेरे बच्चों की रोटी पका दो। मजा नहीं आया? सुभान अल्लाह। सैयद, मेरी और मेरे बच्चों की रोटी। साईं फिर फरमाया, फकीरों के लिए बाकी आटे का लंगर तैयार कर दो। है ना? नांगरी हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी के पास गया। साईं, मेहर अली शाह ने के फतवा दिया। साईं जलाल में आ गए। फिर मैं बुलाओ मेहर अली शाह को। मेहर अली शाह गले में कपड़ा डाल के अदब के साथ मुर्शिद के सामने जरा कह दो सुभान अल्लाह। मुर्शिद दा दीदार में मैंने लख करोड़ा। अल्लाहु अकबर। दुआ करो मुर्शिद की निगाह नसीब हो जाए, मुर्शिद का फैजान मिल जाए, मुर्शिद के दर से खैरात मिल जाए। हाथ बांध के गर्दन झुका के अदब के साथ खड़े हैं। जी साईं, क्या हुक्म है? फरमाया, मेहर अली शाह, अगर तू सैयद न होता मैं तुझे वो सजा देता, दुनिया देखती, मुझे हुर्मत सादात का ख्याल है। तेरे लिए शरीयत और है, फकीरों के शरीयत और है। ये तूने क्या फतवा दिया? क्या तूने इल्म इसलिए पढ़ा है? पीर मेहर अली शाह रोने लग गए। साईं, मैंने इल्म इसलिए नहीं पढ़ा कि मुर्शिद के दर के कुत्तों से नफरत करूं। दर नहीं, चौखट नहीं, गली नहीं, गोठ नहीं, इलाका नहीं, जमीन नहीं, मुर्शिद के शहजादे नहीं, मुर्शिद का खानदान नहीं, मुर्शिद के दर के कुत्तों से नफरत करूं। मुझे ऐसा इल्म नहीं चाहिए। इतना कहना था कि मेहर अली शाह के बैठे, आंखें बंद हुई कि मेरे नबी का दीदार नसीब हो गया। अल्लाह अकबर। मुर्शिद के तर्दे पे आने वालों, यहां से सबर की खैरात मिलती है, सबर की खैरात मिलती है। आओ जरा कुरान से पूछते हैं कि सबर वाले कौन? सबर वाले। आज खानदानों में झगड़े, आज गोलियां चलती हैं, आज बंदे मरते हैं, आज घर गुलशन बर्बाद होते हैं, आज लाशें गिरती हैं। खून बहता है। अल्लाह वालों के तर्दे पे आ जाओ तो खून नहीं बहता, मोहब्बत रसूल का दरिया बहता, दरिया बहता। अल्लाह अकबर। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की गर्दन पे छुरी रखते हैं तो बेटा कहता है, अबू जान, अबू जान, मैं अपना सर जमीन पे रख रहा हूं, इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबिरीन में से पाएंगे। तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो चाहूंगा। बाप बेटे की गर्दन पे छुरी रख के बैठा है और बेटे को कह रहा है, मैं तुझे सिवा कर रहा हूं, मैं तेरी जान दे रहा हूं। कपड़ा नहीं मांग रहा, लट्टा नहीं मांग रहा,
पैसा नहीं मांग रहा, जमीन नहीं मांग रहा, जायदाद नहीं मांग रहा, जान मांग रहा हूं। बेटा कहता है अब्बा एक जान तो क्या हजारों कुर्बान कर दूं, हजारों कुर्बान कर दूं। औलाद फरमा बरदार हो, औलाद खिदमत गुजार हो, औलाद अदब करने वाली हो, औलाद सबर वाली हो। अल्लाह उन्हें बेटे भी वली अता फरमा दे। और सुनो, हजरत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो कुछ फरमाया अल्लाह ने कुरान बनाकर महबूब को तोहफा फरमाया। इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबिरीन में से पाएंगे। मेरे नबी के दादा भी साबिरीन, मेरे नबी के जद्दे आला भी साबिरीन, मेरा नबी का खानदान भी साबिरीन, मेरा नबी भी साबिरीन, मेरे नबी की आल भी साबिरीन, और मेरे नबी की गुलाम भी साबिरीन है। क्या है? साबिरीन है। अल्लाह अकबर। जिधर सबर होगा उधर हक होगा, जिधर हक होगा उधर हुसैन होगा, जिधर हुसैन होगा उधर कुरान होगा, जिधर कुरान होगा उधर मेरे नबी होंगे, और जिधर मेरे नबी होंगे उधर खुद खुदा होगा। इस वक्त पाकिस्तान में दो बिरादर इस्लामी मुल्कों की जंग हो रही है। एक चाहता है खुमैनी स्टेट बने, एक चाहता है नजदी स्टेट बने। ताजदारे दरगाह जाकिरी शरीफ साईं मुनीर अहमद शाह चाहता है ये मोहम्मदी स्टेट बन जाए। जो मोहम्मदी स्टेट चाहते हैं हाथ बुलंद करके कह दे अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में जो कुछ लोग कर रहे हैं, सबर उधर भी नहीं है, सबर इधर भी नहीं है। तुम्हें सबर मिलेगा तो अल्लाह वालों के कदमों में मिलेगा, अल्लाह वालों की महफिल में मिलेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और जरा बुलंद आवाज से कह दो, सबर करने वालों के साथ कौन है? कौन है? जोर से बोलो कौन है? गजबत के बोलो कौन है? सबर वाले को ठोकर लगती है तो मदीने की तरफ देखता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखता है। अल्लाह अकबर। कोई बारूद से मदद मांग रहा है, कोई कलाशन से मदद मांग रहा है, कोई बमों से मदद मांग रहा है, कोई लाशें गिरा के खुश हो रहा है। खुदा की कसम, इमाम हुसैन ने सुबह से लेकर जुमे की नमाज तक, आखिरी सजदे तक आपने सबर से मदद मांगी। अली अकबर का लाशा भी उठाया, अली असगर को हाथों में कुर्बान किया। अल्लाह अकबर। 71 लाशें हजरत इमाम हुसैन ने उठाई हैं। कौन हुसैन? कौन हुसैन? कौन हुसैन? अल्लाह अकबर। जिसके बारे में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। अल्लाह अकबर। नबी का हाथ, हुसैन का हाथ, नबी का जिस्म, हुसैन का जिस्म, नबी की जुबान, हुसैन की जुबान, नबी का वजूद, हुसैन का वजूद, नबी का खून, हुसैन का खून, हुसैन का खून। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। और सुनो, बेटी का बेटा कौन होता है? नवासा। क्या होता है? जोर से बोलो। सहासिंदा उठाओ, तमाम किताबें उठाओ। मेरे आका ने हसनैन करीमैन को नवासा नहीं फरमाया, बेटा फरमाया। क्या फरमाया? बेटा। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। फरमाया हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार। जन्नती जवानों के, शाबाश, जन्नती जवानों के। जो जन्नत में जाना चाहता है वही बोले, जन्नती जवानों के, जन्नती जवानों के। मेरे आका फरमाते हैं, मेरे गुलामों, जन्नत के बागों से गुजरा करो, चल लिया करो। साहबा ने पूछा, ये जन्नत के बाग क्या है? फरमाया, जहां अल्लाह का, अल्लाह के महबूब का जिक्र हो, वो जन्नत के बाग है। आज साईं ने जन्नत का बाग सजाया हुआ है। अल्लाह अकबर। और इमाम हुसैन जन्नती जवानों के, इमाम हसन जन्नती जवानों के सरदार हैं। पाकिस्तान में कुछ लोग वो भी हैं, वो कहते हैं हमें अपने बाप के जन्नती होने पे शक है और यजीद के जन्नती होने पे यकीन है। मैंने कहा, कटरू, तुम्हें यजीद मुबारक हो, हमें हुसैन मुबारक। तुम्हें यजीद मुबारक हो, हमें हुसैन मुबारक हो।
साईं के कदमों पे हाथ रख के एक पैगाम दे के जा रहा हूं जो यजीद को जन्नती कहते हैं। एक दुआ मांगो, या अल्लाह उनका हशर यजीद के साथ करना, हमारा हशर इमाम हुसैन। हुसैनियों गज वक्त कह दो सुभान, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मैं फिरका वारियत की बात नहीं करता, मैं फिरका वारियत पे लानत भेजता हूं। इन आस्थानों पे फिरका वारियत की बात नहीं की जाती, मोहब्बत रसूल की बात की जाती। आज लोग परेशान हैं, आज लोग परेशान हैं। इन आस्थानों पे आते हैं तो सुकून मिल जाता है, राहत मिल जाती है। अल्लाह अकबर। कराची शहर, मदरसे का नाम है बिन्नूरी टाउन। बिन्नूरी टाउन से एजेंसियां नोट करें, मेरे पास किताब मौजूद है, मेरे पास मुसम्मा मौजूद है। उस बिन्नूरी टाउन से एक किताब छपी जिसका नाम बताते हुए कलेजा फटता है, जिसका नाम लेते हुए जिगर फटता है, जिसका नाम लेते हुए अल्लाह का कहर नजर आता है। खुदा की कसम मुझे जेब नहीं देता मैं उसका नाम लूं, पर आपको बता रहा हूं कि यजीदी कौन है, हुसैनी कौन है। उन्होंने किताब का नाम रखा अमीरुल मोमिनीन हयात सैयदना यजीद रहमतुल्लाह। सारे कह दो लानतुल्लाह। दूर से बोलो, कदमत के बोलो, ऊंची आवाज से बोलो, जोर से बोलो। तुम अपने बच्चों का नाम यजीद रखो, हम अपने बच्चों का नाम हुसैन रखेंगे। तुम अपने बच्चों का नाम शिकर रखो, हम अपने बच्चों का नाम अली असगर रखेंगे, अली अकबर रखेंगे, आल मोहम्मद रखेंगे। अल्लाह अकबर। दीन मिटने लगा, दीन को मिटाया जाने लगा। ताकत भी है, हुकूमत भी है, पैसा भी है, इक़्तिदार भी है, सल्तनत भी है, और 20,000 से 40,000 फौज भी है। मैदान करबला में नवासाए रसूल है। कौन है नवासाए? साईं। आज लोग कहते हैं दीन पे चलना बड़ा मुश्किल है सईदी साहब, दीन पे चलना बड़ा मुश्किल है। बताओ नीचे दरिया बिछी हुई है या नहीं? बोलो, जरा जोर से बोलो। बिछी हुई है। मस्जिदों में बाथरूम है या नहीं? वुजू खाने हैं या नहीं? मस्जिद में कालीन है या नहीं? पंखे चल रहे हैं। अल्लाह अकबर। आज तुम कालीनों पे सजदा करो, मेरे नबी का शहजादा तपती हुई रेत पे सजदा। 113 या 33 जख्म तीर के हैं, 135 जख्म तलवार के हैं, 35 जख्म तलवार के हैं, 34 जख्म नेज़े और भाले के हैं। इमाम हुसैन उस वक्त भी सजदा कर रहा है। क्या कर रहा है? जरा बोलो तो सही, ऊंची आवाज से बोलो। घर में जाना, कान में अजान की आवाज आए तो इमाम हुसैन का सजदा याद करना। घर में जाना, पानी पीने लगो तो आले रसूल की प्यास को याद करना, मासूम अली असगर को याद करना। अल्लाह अकबर। कौन है जो ये चाहता है इस मुल्क में अमन कायम हो जाए? मेरा हाथ बुलंद करके कह दो। सब चाहते हो तो आओ मुर्शिद के सामने अल्लाह को गवाह बना कर वादा करो, इंशाअल्लाह हम नमाज पढ़ेंगे। पता नहीं आया जवाब का? इंशाअल्लाह को हम नमाज पढ़ेंगे, हमारी खवातीन पर्दा करेंगी। अल्लाह अकबर। किसी का हक नहीं मारेंगे, किसी पे जुल्म नहीं करेंगे, गीबत नहीं करेंगे, चुगलखोरी नहीं करेंगे, किसी के साथ जुल्म नहीं करेंगे। अजान की आवाज आई, अल्लाह अकबर। जो अजान हजरत बिलाल ने काबे की छत पर दी, जो अजान हजरत अली अकबर ने मैदान करबला में दी, आज दरगाह जाकिरी शरीफ पर वही अजान हो रही। नहीं आया मजा नहीं आया। जोर से कह दो, ऊंची आवाज से कह दो, वक्त कह दो, अल्लाह अकबर। खुदा तुम्हें हुजूर का दीदार कराए, अल्लाह तुम्हें हक की शहादत अता फरमाए। जो नमाज मेरे नबी ने पढ़ाई, जो नमाज मैदान करबला में इमाम हुसैन ने पढ़ाई, वही नमाज आज दरगाह जाकिरी शरीफ पे पढ़ाई जा रही। जो कुरान मेरे नबी के कल्ब पर नाज़िल हुआ, जो कुरान मेरे नबी ने पढ़ा, जो कुरान इमाम हुसैन ने नेज़े की नोक पे पढ़ा, आज वही कुरान दरगाह जाकिरी शरीफ पे पढ़ा। दरगाह से वापस्ता
हर कुरान के घर में, हर मुसलमान के घर में वो कुरान मौजूद है। एक मसला मुझे बता दो, एक मसला मुझे बता दो, दीन का दर्द रखने वालों, दीन से मोहब्बत करने वालों, दीन से प्यार करने वालों, तुम टिकट लेके नहीं आए, पैसा लेके नहीं आए, तुम आए हो तो नबी के इश्क में आए हो, मुर्शिद के प्यार में आए हो, अल्लाह की रजा के लिए आए हो। अपना पैसा खर्च किया है, आराम छोड़ा है, नींद छोड़ी है, सफर की तकलीफें उठाई है, इसलिए आए हो। अल्लाह अकबर। आज तुम सैयदों के मेहमान हो, आज आले रसूल के मेहमान हो, आज मदीने वाले खोट के मेहमान हो, मदीने वाले खोट के मेहमान हो। मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, कयामत तक तुम्हारे हाथ चूमूंगा, कयामत तक तुम्हारी गुलामी करूंगा। हजरत मौला अली पाक की कौन सी नमाज कज़ा हुई थी कि सूरज वापस आया? जी बाबा, नमाज है सिद्धि में क्या कहते हैं? बेपारी। जोहर को क्या कहते हैं? बेपारी। जोहर वाली बेपारी, असर वाली त्रे पैरी नमाज कज़ा थी। मौला अली पाक रोते हैं, आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं और वद्दुहा के मुखरे पे पड़ते हैं। मेरे आका ने फरमाया, अली क्यों परेशान? आका नमाज कदा हो गई है। मैं आपसे पूछता हूँ, कौन सी नमाज कदा हुई? त्रे पैरी। मजा नहीं आया? चलो मैं नाराए हैदरी लगाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह याद आ जाए। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। अली मवालियों का नहीं, सुन्नियों का है। नाराए तकबीर, हाथ मत करो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए ताक़ीब, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। अली दस्तगीर का है, अली सुन्नियों का है, अली हमारा है। जरा मोहब्बत से कह दे, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। चमन चमन गली गली, चमन चमन गली गली। अली 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 की कौन सी नमाज कदा हुई? त्रे पैरी। पता चला बेपहरी पढ़ चुके थे, त्रे पैरी नहीं पढ़ी। अगर जोहर और असर मिलाओ तो बनती है जोहरैन, मगरिब और इशा मिलाओ तो बनती है मगरिबैन। अली जोहरैन नहीं पढ़ते थे, जोहर पढ़ते थे। नहीं नहीं नहीं, मजा नहीं आया। अली जोहरैन नहीं, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा जो नमाज अली पढ़ते थे वही सैयद मनीर अहमद शाह पढ़ रहा, वही सुन्नी पढ़ रहा है। आओ आओ, मौला अली से मोहब्बत करने वालों, पंचन पाक से प्यार करने वालों, अल्लाह अकबर। हम वाह हुसैन कहने वाले हैं, वाह हुसैन। जोर से कह दो, ऊंची आवाज से बोलो, जन्नती जवानों का सरदार वाह हुसैन, नबी के कंधों पे खेलने वाला हुसैन, वाह हुसैन जिसकी खातिर मेरे नबी ने खुतबा छोड़ा, वाह हुसैन जिसकी खातिर सजदा लंबा किया, वाह हुसैन अल्लाह अकबर जिसने नेज़े की नोक पे कुरान सुनाया, वाह हुसैन। जोर से बोलो, ऊंची आवाज से बोलो, अल्लाह अकबर। कौन हुसैन? पंचन पाक के घराने का चश्मो चराव। कौन हसन? पंचन पाक के चश्मो चराव। कौन अली? पंचन पाक के घराने का फर्क। अल्लाह अकबर। मेरे साथ मिलके कह दो, मेरा नबी भी पाक है। बोलो, मेरा नबी भी, मौला अली भी, बीबी फातिमा भी, इमाम हसन भी, इमाम हुसैन भी। एक तन मेरे नबी का, एक तन मौला अली का, एक तन सैयदा का, एक तन इमाम हसन का, एक तन इमाम हुसैन का। ये बनते हैं 5 तन, 5 तन, 5 तन, 5 तन, 5 तन, 5 तन। अल्लाह फरमाता है पाक 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 पाक। कुरान का 22वां पारा, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अरे आपको मुझे नींद आए वुजू टूट जाता है, नबी को नींद आए वुजू नहीं टूटता। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। ऐने नमाज की हालत में दाएं देखोगे नमाज गई, बाएं देखोगे नमाज गई। मस्जिद नबवी शरीफ में सहाबा काबे को छोड़कर मेरे नबी का दीदार कर रहे हैं।
अदा नहीं आया? सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसल्ले पे हैं, मेरे आका हुजूर पाक का दरवाजा पकड़ के खड़े हैं। साथ वाले सहाबी ने देखा, उसने साथ वाले को कोनी मारी, इशारा किया, कोनी मारी, इशारा किया, कोनी मारी। तमाम सहाबा के चेहरे काबे से हट गए मेरे नबी के चेहरे की तरफ। बोलो नमाज किसी की नहीं टूटी? बोलो नमाज किसी की नहीं टूटी। क्यों? पहले मुंह काबे की तरफ था, अब काबे के काबे की तरफ। मसला समझ में नहीं आया तो एक दलील और दे दूं, मेरा जोर से कह दो सुभान, बुलंद आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। मक्का फतह हुआ, मेरे आका ने फरमाया बिलाल, जी आका, रंग का काला, होठ मोटे, हबशी गुलाम, फरमाया बिलाल, जी आका, काबे की छत पे चढ़ जाओ और अजान सुनो। काला बिलाल, हबशी बिलाल, काबे की छत पर, पता चला इश्क की दौलत मिल जाए, मोहब्बत की खैरात मिल जाए तो काबा नीचे होता है, आशिक ऊपर होता है। और ये इश्क मिलता है मुर्शिद के दर से, मुर्शिद के दर से, मुर्शिद के दर से। अल्लाह अकबर। जितनी सच्ची मोहब्बत होगी इश्क उतना ज्यादा मिलेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। काबा नीचे, हजरत बिलाल ऊपर। कभी उधर देखा, कभी इधर देखा, कभी दाएं देखा, कभी बाएं देखा। बिलाल टहल रहा है, मेरे आका ने फरमाया बिलाल अजान दो। आका, काबा ढूंढ रहा हूं, काबा मिल ही नहीं रहा, क्योंकि अजान देने के लिए काबे की तरफ मुंह करना जरूरी है। सामने काबा नहीं, मशरिक में काबा नहीं, मगरिब में काबा नहीं। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने फरमाया बिलाल, मेरी तरफ मुंह करके अजान पढ़ो। सुभान अल्लाह। सीने का जोर लगा के करो। ये इश्क है, ये मोहब्बत है। मुर्शिद दा दीदार में मैनू लख करोड़ा हजार। हमारी निगाह मुर्शिद के चेहरे पर, मुर्शिद की निगाह मुर्शिद के चेहरे पर, मुर्शिद की निगाह मुर्शिद के चेहरे पर। चलते 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 इनकी निगाह मेरे गौस के चेहरे पर, गौस पाक की निगाह मौला अली के चेहरे पर, मौला अली की निगाह वद्दुहा के मुख। इसकी खैरात है, ये मोहब्बत की खैरात है, ये प्यार की खैरात है। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों, फरमाया बिलाल, मेरी तरफ मुंह करो। आज तक फतवा तो बड़ी बात है, फतवी भी नहीं लगी। कटड़ू छोड़ू, काबे की तरफ मुंह नहीं है। जान हुई या नहीं? बोलो। 14 सदियां गुजर गई, कोई फतवा न लगा सका। पर मस्जिद नबवी शरीफ हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसल्ला रसूल पे खड़े हैं। अबू बकर भी मेरे नबी का चेहरा देख रहे हैं, सारे सहाबा भी मेरे नबी का चेहरा देख रहे हैं। किसी की नमाज नहीं टूटी कटरू, किसी की नमाज नहीं टूटी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आओ तुम्हें एक ऐसा फूल पेश कर दूं कि झोलियां उठा के गरीब के लिए दुआ, फकीर के लिए दुआ। एक शख्स नमाज पढ़ रहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाई, वो नमाज तोड़ के सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आ जाए तो मेरे आका फरमाए, जाओ अहल बैत के लिए सब्जी लेके आओ, साबुन लेके आओ, तेल बाजार से लेके आओ, चीनी लेके आओ, आटा लेके आओ, घर की जरूरत की चीजें लेके आओ। सामान लेके आ गया। मेरे आका ने फरमाया, जाओ उसे दोबारा नमाज शुरू करने की जरूरत नहीं, जहां छोड़ी थी वहीं से पढ़ेगा, क्योंकि उसकी नमाज टूटी नहीं है। उसकी नमाज टूटी। अब आप कहेंगे वो कैसे? काबे से मुंह हट गया, मदीने की गली में गया, मदीने के बाजार में गया, सौदा साहब खरीदा, आ गया वापस। आओ, एक तरफ कुरान है, एक तरफ मेरा नबी है। कुरान क्या कहता है? अल्लाह ने फरमाया, वमन युति'ir रसूला फक़द अता अल्लाह। जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत। नमाज किसकी इताअत है? जोर से बोलो, ऊंची आवाज से बोलो। अल्लाह की बारगाह में है, पर मेरे नबी ने भेजा सौदा सड़क। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बे इजाजत जिनके घर में जिब्रील अमीन आते नहीं, जिनके
के घर में बे इजाजत जबरील अमी आते नहीं। और कदर वाले जानते हैं कदर शाने, कदर शाने, बोलो कदर शाने। ये सैयद है, आले रसूल है, आले बैत है। आओ आओ आओ, अल्लाह के कामिल बंदे के उर्स में आने वालों, आओ गौर करो। असहाबे कहफ 309 साल तक सोए रहे, ताकत में कमी नहीं आई, चेहरों का नूर भी खत्म, जरा बोलो तो सही, नूर भी खत्म नहीं हुआ, ताकत खत्म नहीं हुई, जिस्म खराब नहीं हुए, तवानाई खत्म नहीं हुई। वो सो रहे थे, वो सो रहे थे। दरगाह जाकिर शरीफ पे आने वालों, उनकी चौखट पे कुत्ता जाग रहा था। कुत्ता खा भी नहीं रहा, पी भी नहीं रहा। 309 साल गुजर गए। अल्लाह अकबर, वलियों के चेहरों को देख रहा है। कुत्ता कुत्ता असहाबे काफ के चेहरों को देखे तो 309 साल तक न भूख लगे न प्यास लगे। हम मुर्शिद का दीदार देखें, दीदार करें तो फिर न भूख की परवाह है न प्यास की परवाह है। वो असहाबे काफ थे, ये पंतन पाक के जिगर का टुकड़ा है, पंतन पाक के जिगर का टुकड़ा है। एक जगह मैं गया, मुझे किसी ने पर्ची दी, सैयदी साहब जरा हल्का हाथ रखा करो। मैंने कहा क्यों? बोला तुम कुछ जुमले ऐसे कह जाते हो जिसमें लोगों का दिल दुखता है। मैंने कहा साईं, मैं तो अहले बैत के दर का कुत्ता हूं, अल्लाह वालों के दर का कुत्ता हूं। कुत्ते को मालिक रोटी देता है, टुकड़े डालता है। अब चोर चोरी करता रहे, कुत्ता सोया रहे, डाकू डाका डालता रहे, कुत्ता सोया रहे, चोर आकर डाके डालते रहे, डाकू डाका डालते रहे, कुत्ता सोया रहे। लानत है उस कुत्ते पर। कुत्ता तो वो होता है तो चौकीदारी करता है। क्या करता है? जरा जोर से बोलो, क्या करता है? मालिक सो जाता है, कुत्ता चौकीदारी करता है। अकरम सईदी दीन का ठेकेदार नहीं है, दीन का चौकीदार है। बोलो, दीन का चौकीदार है। जो दीन के ठेकेदार बने उनको डॉलरों में खरीदा गया, उनको रियालों में खरीदा गया, वो डॉलर पे पलते हैं। अकरम सईदी इस दर के टुकड़ों पे पलता है, दस्तगीर के टुकड़ों पे पलता है, आलम के टुकड़ों पे पलता है। हमें रियालों पे नाज नहीं है, आमना के लाल पे नाज है, आमिना के लाल पे नाज है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज से बोलो, जोर से बोलो, ईमान से बताओ, असहाबे काफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा या नहीं? जी बाबा, जो नहीं मानता मैं उसको मोमिन मुसलमान भी नहीं मानता। कुरान कुरान असहाबे काफ का कुत्ता जन्नत में, बोलो जन्नत में। आखिरी बात कह रहा हूं, जोर से कह दो जन्नत में। बार बार भी बोलो जन्नत में, जन्नत में। क्या कुत्ते ने कलमा पढ़ा, दाढ़ी रखी, पगड़ी बांधी, नमाजें पढ़ी है, मस्जिद बनाई है? यार बोलो तो सही, मदरसा बनाया नहीं। कुत्ता कुत्ता अल्लाह वालों की चौखट पे पड़ा। आओ अभी कुरान उठा के मैं तुम्हें दिखाता हूं। फरिश्ते असहाबे काफ की जिसमें मुबारक को भी पलटते हैं, कुत्ते को भी पलटते हैं। जब अल्लाह वाले आ रहे, उनके दिल में ख्याल आया कुत्ता भौंकेगा, दुश्मन को पता चलेगा, पत्थर मारे, कुत्ता नहीं भौंक रहा, लाठियां मारे, कुत्ता नहीं भौंक रहा, धुतकार रहे, कुत्ता नहीं भौंक रहा। कुत्ता कहता है कुत्ता जरूर हो, वलियों को भौंकने वाला नहीं हो। यारों कह दो सुभान अल्लाह, वलियों को भौंकने वाला, बोलो वलियों को भौंकने वाला, वलियों को भौंकने वाला। 309 साल तक अल्लाह वालों की चौखट पे पड़ा रहा। अल्लाह अकबर। इस कुत्ते को अकल आ गई, पर इस कुत्ते के बच्चे को अकल नहीं आई। हदीस पाक में आता है, गद्दा 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 खोता एक सहाबी का था, वो काटता भी था, दो लत्तियां मारता था। वैसी आ गया मदीने वाले घोट की बात, मेरा गधा मुझे दो लत्तियां मारता है, मुझे काटता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गधे को ले आओ, गधा को ले आओ। गधा आ गया, जब मेरे आका को देखा तो गधा ने सर झुका।
मेरे आका ने हाथ फेरा, गधा से पूछा मालिक को क्यों काटता है, मालिक को क्यों मारता है। उसने अपनी जुबान में कहा सोना, मेरे खानदान में जितने गधा गुजरे हैं ना, उन पर भी नबी सवार हुए हैं, नबी सवार हुए हैं। मैं अपने खानदान का आखिरी खोता, आखिरी गधा, आप आखिरी नबी। आप अगर आप गुलामी में कबूल फरमा लें तो मैं आपकी नौकरी करूंगा। मेरे आका ने फरमाया, और मेरे सहाबी, ये गधा कहता है मेरे खानदान में मैं आखिरी गधा हूं, आखिरी खोता हूं, आप गुलामी में कबूल करें। साईं आप कबूल फरमा लें। उसका नाम था यजीद बिन शहाब। ये यजीद नाम गधा के होते हैं, यजीद बिन शहाब। मेरे आका ने उसका नाम रखा याफूर। क्या नाम रखा? याफूर। अब गधा मस्जिद नबी के दरवाजे पे खड़ा रहता, लिद नहीं करता था, पेशाब नहीं करता था। नहीं नहीं नहीं, कह दो सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं याफूर। कान खड़े हो गए, अटेंशन हो गया। मेरे आका फरमाते जाओ फला सहाबी को बुला के लाओ। साईं अपने गुलाम को फरमाए बाबा फला बंदे को बुलाओ। साईं नाम क्या है? साईं ने नाम बता दिया। वालिद का नाम क्या है? साईं ने वालिद का नाम बता दिया। साईं जात केड़ी? साईं ने जात बता दी। साईं खिट्टी केड़ी? साईं ने खिट्टी बताई। गोट केड़ा? साईं ने गोट बताया। सा कौ गोट सब कुछ बताया। फिर भी ढूंढ रहा है, पर गधा को मेरे आका ने फरमाया फला सहाबी को बुलाओ। नाम नहीं पूछा, कौम नहीं पूछी, जात नहीं पूछी, दौड़ता हुआ उसी सहाबी के घर को टक्कर मारता जिसको मेरे नबी ने बुलाया। मेरे आका जब वो बाहर निकलता घर से कहता तुझे मेरे आका बुला रहे, सरकार बुला रहे। अल्लाह अकबर। नबी की बारगाह में गड्ढा आ जाए उसको अकल आ जाती है, पर इस गड्ढा को कभी अकल नहीं आई। वो गड्ढा है, नाम भी जानता है, पता भी जानता है, कौम भी जानता है, एड्रेस भी जानता है। आओ आओ। जब मेरे नबी का विशाल हो गया तो गड्ढा मदीने की गलियों में रोता था, कुएं में गिर के मर गया, किसी और को नहीं आने दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पर एक दिन मौला अली पाक ने ऐलान कर दिया, और मदीने वालों जो पूछना है आज पूछ लो, जो सवाल करना है कर दो। एक शख्स आया, सवाल किया, जवाब दिया, दूसरे को दिया, तीसरे को दिया, तमाम लोग जवाब लेके जा रहे हैं। जिब्रील कहते हैं मौला इजाजत हो तो मैं भी चला जाऊं, मैं भी चला जाऊं। फिर मैं जाऊं। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, आकर पूछा या अली जिब्रील कहाँ है? मौला अली पाक ने ऊपर देखा, नीचे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, फिर जिब्रील को देखकर फरमाया तू जिब्रील है, तू जिब्रील है। जिब्रील कहता है साईं आपको कैसे पता चला कि मैं जिब्रील हूं? फरमाया ऊपर देखा तो नजर नहीं आया। कह दो सुभान अल्लाह। ये निगाह है अली की, तो मेरे नबी की निगाह का क्या कमाल होगा। ऊपर देखा नजर नहीं आया, नीचे देखा नजर नहीं आया, दाएं देखा नजर नहीं आया, दाएं देखा नजर नहीं आया, तो मैंने देखा तू है। खुदा की कसम वो अली है, ये अली का बचड़ा है। बाजार में सोने वाला अली का बचड़ा है, दम दस्तगीर का बचड़ा है। चमन चमन गली गली, चमन चमन गली गली। अली काबे के अंदर पैदा हुए, मस्जिद के अंदर शहीद हुए। बताओ दरगाह जाकिरी शरीफ आने वालों, जब औरत बच्चे को जन्म देती है वो पलीत होती है, नापाक होती है। काबा भी पाक है, काबे के अंदर मौला अली पैदा हो रहे हैं। जोर से कह दो मौला अली भी, मौला अली भी, मौला अली भी। कुर्बान जाऊं आला हजरत की शान पर, कुर्बान जाऊं इमाम अहमद रजा की शान पर। आपसे किसी ने पूछा साईं आले रसूल के बारे में, अहले बैत के बारे में आपका क्या फतवा? फरमाया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर, तेरा सब घराना। अच्छा ये बताओ गुस्ल फर्ज हो जाए तो क्या मस्जिद में आना चाहिए? जी बाबा, नमाज पढ़ना चाहिए? नहीं। मौला अली पाक पे गुस्ल फर्ज है,
मस्जिद में नहीं आए, मेरे आका ने फरमाया अली आज मस्जिद में नहीं आए, आका हुस्न फर्द हो गया था, फरमाया हर हालत में मस्जिद में आ भी सकता है, जा भी सकता है, आ भी सकता है, जा भी सकता है। आओ मेरे नबी के घराने की शान, बीबी फातिमा की कभी नमाज कदा नहीं हुई। कह दो सुभान अल्लाह। सैयदा कायनात की नमाज कदा नहीं हुई। हजरत अम्मा हवा से लेकर कयामत तक हर औरत की नमाज कदा होती है, पर खातून जन्नत सैयदतुन निसा बीबी फातिमा तज़हरा का सजदा कदा नहीं हुआ। मेरा नबी पाक मौला अली, बोलो मौला अली, बीबी फातिमा, बोलो बीबी फातिमा, जोर से बोलो बीबी फातिमा, गदवत से बोलो बीबी फातिमा, इमाम हसन पाक, इमाम हुसैन पाक, ये पंचतन पाक का घराना है। अल्लाह अकबर। जिनको पंचतन पाक के घराने की गुलामी नसीब हो जाती है, खुदा की इज्जत की कसम, अल्लाह अकबर। मैं बड़ी प्यारी बात कह रहा हूँ जो मेरे बुजुर्गों ने मुझे सिखाई है। इस घराने का जब से मैं नौकर हुआ, कोई गवर्नमेंट का नौकर, कोई वडेरे का नौकर, कोई सरदार का नौकर, कोई दुनियादार का नौकर, हम सुन्नी पंचतन पाक के नौकर। तो नौकर है, हाथ बंद करके कह दे, इस घराने का जब से मैं नौकर हुआ सबसे अच्छी मेरी नौकरी हो गई, सबसे अच्छी मेरी नौकरी हो गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों, मेरे आका से प्यार करने वालों, आले बैत से मोहब्बत करो, आले रसूल से प्यार करो। मेरे आका ने फरमाया दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान, एक आले बैत। सुनियो मुबारक हो, तुम्हारे एक हाथ में कुरान है, दूसरे हाथ में पंचतन पाक की गुलामी का दाम। दोनों बेसब्रों में किसी के पास कुरान नहीं है, किसी के पास अहले बैत की मोहब्बत नहीं है। हमें दोनों नेमतें मिली, पंचतन पाक की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, कुरान अहले बैत। जिसके बाद ये दोनों हैं, मेरे अल्लाह की कसम है, अहले बैत के सदके कब्र में जाएगा, उसे मेरे नबी का दीदार होते। अच्छा ये बताओ, मौत हक है या नहीं? जी बाबा, मरना या नहीं मरना? जी मैं तो नहीं मरना चाहता, तुम क्यों मरते? क्यों जरूरी है बाबा? तो वक्त आएगा देखा जाएगा। मौत की दुआ मांगना हराम, पर शहादत की मौत मांगना मेरे नबी की सुन्नत। और मेरे नबी की कभी मौत ना मांगना, कभी मौत की दुआ ना करना। मौत हक जरूर है, आनी जरूर है, पर इतना आज सोच लो, नबी के नाम पे मर जाए तो ये सौदा महंगा नहीं है, सस्ता है। आल बैत के नाम पे मर जाए, ये सौदा महंगा नहीं है, सस्ता है। मरना जरूर है, ऊंची आवाज से कह दो मरना, बोलो मरना। जब कब्र में जाएंगे, 3 सवाल, 3 मेरी पूरी तकरीर का खुलासा, मेरी पूरी गुफ्तगू का निचोड़, मेरी पूरी तकरीर का माखज़ कब्र में चले गए। पहला सवाल, मन रब्बों का, तेरा रब कौन है? इतना जोर से कह दो मेरे सीने में ठंड पड़ रहा है। तेरा रब, तेरा रब, इसको कहते हैं तौहीद। क्या कहते हैं? तौहीद। अल्लाह को मानना तौहीद, अल्लाह की जात पे यकीन तौहीद, अल्लाह को एक मानना तौहीद। कब्र में पहला सवाल तौहीद का है, तेरा रब कौन है? जवाब आया रब्बे जिल्लाह, मेरा रब, मेरा रब अल्लाह। बोलो मेरा रब, मजा नहीं आया? मेरा रब, मेरा रब, मेरा रब। जन्नत की खिड़की नहीं खुली, जन्नत का दरवाजा नहीं खुला। अल्लाह फरमाता है दूसरा सवाल, मां दीनों का, तेरा दीन क्या है? जवाब दिया दीन है इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। तौहीद भी हो गई, इस्लाम का दावा भी हो गया। दरगाह ज़ाकिरी शरीफ पे आने वालों, अभी जन्नत नहीं मिली। बोलो जन्नत खिड़की नहीं खुली, दरवाजा नहीं खुला। अब तीसरा सवाल, मन नबियों का, तेरा नबी कौन है? कहते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खिड़की नहीं खुली, जन्नत का दरवाजा नहीं खुला, तौहीद का ऐलान हो गया, इस्लाम का दावा हो गया, सीरतुन नबी की बात हो गई। कचड़ू, अभी जन्नत का दरवाजा नहीं खुला।
فرشتے پوچھتے ہیں مولا کیا حکم ہے؟ فرمایا میرا محبوب آ رہا ہے، اب میلاد ہوگا۔ کیا ہوگا؟ زور سے بولو، اونچی آواز سے بولو، میرا محبوب آ رہا۔ ایک سیکنڈ نہیں گزرا تو ودھا کے بکھرے والا آ گیا، طٰہٰ کے تاج والا آ گیا، یاسین کے سیرے والا آ گیا۔ فرشتوں نے پوچھا من ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ذاکری درگاہ کا غلام بولا میں تو عرس میں آیا کرتا تھا، میں تو 11ویں مناتا تھا، میں تو میلاد کرتا تھا، میں تو محفلیں سجاتا تھا، میں ہند سندھ پنجاب پھرا، میں تجار ملم کا انسان سبب، میں تو اس لیے آیا تھا، ہو سکتا ہے دیدار ہو جائے۔ نہیں کہہ دو سبحان اللہ۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ذکر ہوگا، نبی کی نعتیں ہوگی، اولیاء کی باتیں ہوگی، پنجتن پاک کا ذکر ہوگا۔ اللہ اکبر، ٹھہرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ اکبر، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں۔ اب شیعہ، دیوبند، بریلوی، غیر مقلد تمام علماء اس مسئلے پہ متفق ہیں کہ قبر میں حضور تشریف لاتے ہیں۔ بولو، علماء شیعہ متفق، علماء دیوبند متفق، علماء غیر مقلد متفق ہے، علماء بریلوی متفق ہے کہ قبر میں سرکار تشریف لاتے ہیں۔ یاروں، قبر میں آ سکتے ہیں تو مرشد، ہمارے مرشد کے تدے پہ دیدار نہیں کرو۔ ایک دن میں لاکھوں کروڑوں انسان مرتے ہیں، میرے نبی ہر قبر میں دیدار کرتے ہیں۔ اگر وہاں دیدار کرا سکتے ہیں تو درگاہ ذاکری شریف پہ آنے والوں کو بھی دیدار، انہوں دیدار جنت کے بڑے دیدار کرا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، تینوں سوالوں کے جواب صحیح دیے، جنت نہیں ملی۔ اب سائیں کے قدموں کو چوم کے ایک بات کر رہا ہوں۔ ایک شخص قبر میں آ گیا، فرشتوں نے پوچھا من ربوں کا؟ کہتے ہیں دستگیر کا دھوبی ہوں۔ 14 صدیوں تک کسی نے ایسا جواب نہیں دیا، نہ کوئی قیامت تک دے گا۔ فرشتے پوچھتے ہیں من ربوں کا؟ کہتے ہیں دستگیر کے کپڑے دھوتا، یاری والے پیر کا دھوبی ہوں، دستگیر کا دھوبی ہوں۔ ماں دینوں کا؟ کہتے ہیں دم دستگیر کا دھوبی ہوں۔ من نبیوں کا؟ کہتے ہیں دم دستگیر کا دھوبی ہوں۔ فرشتے کہتے ہیں مولا کوئی چلیا، کوئی دیوانہ آ گیا، کوئی مستانہ آ گیا، تینوں سوالوں کے جواب غلط۔ اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا جواب غلط نہیں، تم سمجھے ہی نہیں ہو۔ نہیں سمجھے، سبحان تم سمجھے ہی نہیں ہو۔ قیامت کا دن ہوگا، درگاہ ذاکری شریف کا غلام کہے گا، پوچھیں گے فرشتے قبر میں من ربوں کا؟ کہتا ہے میں تو لنگر پکاتا تھا۔ نہیں میں تو لنگر کھلاتا تھا، میں تو نوکری کرتا تھا۔ اللہ اکبر، دم دستگیر کے غلاموں، تینوں سوالوں کے جواب غلط۔ اللہ نے فرمایا ہٹ جاؤ، یہ عبد القادر جیلانی کا مرید ہے۔ کون عبد القادر جیلانی؟ فرمایا سورج صبح نکلتا ہے تو سید عبد القادر جیلانی کو سلام کرتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے تو سید عبد القادر جیلانی کو سلام کرتا ہے، دن آتا ہے تو سلام، رات آتی ہے سلام، چاند سلام، ستارے سلام، گھڑیاں سلام۔ کیوں؟ میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کون عبد القادر جیلانی؟ کون عبد القادر جیلانی؟ ایک بدبخت کہنے لگا سائیں ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بھی لوگ۔ بابا دم دستگیر کا قدم اپنے زمانے کے ولیوں کی گردن پر ہے، ہمارے گردن پر نہیں۔ ایک جگہ کسی بدبخت نے یہ کہا کہ بابا ہماری گردن پر نہیں ہے، اپنے زمانے کے جو ولی ہیں ان کی گردن پر ہے۔ تو اسی اسٹیج پر، اسی کے سامنے میں نے اسی سے پوچھا کہ سائیں یہ بتا تو کتنی پشت میں دنیا میں آیا؟ کہتا ہے 11ویں پشت میں۔ میں نے کہا 11ویں پشت میں جو تیرا پردادا تھا، تیرے دادے کے دادے کا دادا، تیرا پردادا چھڑدادا تھا، اس کی گردن پر ہے؟ بولا ہاں اس کی ہے۔ میں نے کہا بڑا بدبخت ہے، دادے کی گردن پر ہے، اپنے آپ پہ نہیں مانتا۔ اللہ اکبر، قدمی حاضر ہی انا رکھبت کل ولی اللہ، جب تک
दस्तगीर का कदम गर्दन पे नहीं आए, कोई वली वली बन सकता, बोलो बन सकता नहीं है। ये विलायत, ये सरदारी, ये गौसियत, ये कुतुबियत, ये सारी चीजें मेरे गौस पाक की चौखट से मिलती है। दम दस्तगीर के गुलामों, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। चार यार, एक का नाम है फरीदुद्दीन, मैं नाम लूंगा, आप कह देना सुभान अल्लाह। एक का नाम है फरीदुद्दीन, दूसरे का नाम है बहाउद्दीन, तीसरे का नाम है अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर उस्मान मरवंदी, और चौथे का नाम है मुस्लिहुद्दीन। ये चार यार, चार दोस्त बगदाद शरीफ गए, पता चला मेरे गौस पाक विशाल फरमा गए। पूछा साईं का खलीफा कौन है? बोला शेख शहाबुद्दीन उमर सोरवर्दी है। कौन शेख शहाबुद्दीन? इनका बाबा गौस पाक का गुलाम है, गौस पाक का खिदमत गुजार है, दम दस्तगीर के डर का गदा है, मेरे नबी के बछड़े का गुलाम है। एक दिन कहते हैं साईं मेरे घर में बेटियां हैं, दुआ करो अल्लाह मुझे बेटा दे। मेरे गौस पाक ने फरमाया इंशाअल्लाह बेटा होगा। क्या फरमाया? इंशाअल्लाह। फकीर कोठ में आया, सुबह की नमाज पढ़ी, जमात को कहते बाबा लख लख मुबारकू, मेरे घर में बेटा होगा। बोलो मेरे घर में। फकीर कामों पे चले गए, फकीर मियां जमा हो गई, बीबी आज तेरे मुर्श ने मस्जिद में कहा है कि मेरे घर में बेटा होगा, क्या कोई उम्मीद है? कहती है कुछ भी नहीं है। बाबा फकीर ने कहा, बोला फकीर तो कहते ही रहता है, उसको छोड़ो, अभी कोई उम्मीद नहीं है। अल्लाह ने करम किया, उम्मीद हो गई, उम्मीद हो गई। दिन हो गए पूरे, घरवाली के बाद दाई को लेके आए। दाई को कहता है खबरदार मेरे घर में बेटा होगा, बेटा जब लड़का हो जाए ना तो उसे नहला के कपड़े में लपेट के मुझे देना, घुट्टी भी दस्तगीर देगा, अजान भी दस्तगीर देगा, नाम भी मुर्शिद रखेगा। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। घर में बच्चा बच्ची हो ना तो नाम मुर्शिद से रखवाया करो। शहद घर में शहद माखी चटवा के जूठा करा के घर में रखा करो। बच्चा बच्ची पैदा हो तो सैयद का जूठा खिलाया करो। नाम भी मुर्शिद रखेगा, घुट्टी भी मुर्शिद देगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह की शान के बेटी पैदा होगी, बेटी पैदा होगी। अब फकीर ने बेटी को उठाया, दाई कहती है बेटी, फकीर कहता है बेटा, दाई कहती है लड़की, फकीर कहता है लड़का, दाई कहती है ये न्याणी है, वो कहता है नहीं ये लड़का, तू झूठी है, मेरा मुर्शिद सच्चा। कह दो मेरा मुर्शिद, जोर से मेरा मुर्शिद, मेरा मुर्शिद सच्चा। कपड़े में लपेट के साईं गौस पाक के दरवाजे पे आ गया। साईं तहज्जुद पढ़ रहे हैं, जिक्र में मसरूफ है, फारिग हो गए। बच्ची को कदमों में सुला के कहते हैं साईं मेरे घर में न्याणियां गंजन, ये आप संभालो। लोगों को पता चल गया, कहेंगे पीर भी झूठा, मुरीद भी झूठा। साईं अपनी तौहीन बर्दाश्त कर सकता हूं, मुर्शिद की तौहीन बर्दाश्त। मेरे गौस पाक ने फरमाया बेटी देने वाला भी अल्लाह, बेटे देने वाला भी अल्लाह ने बेटे दिया तो बेटा भी देगा। साईं आपने फरमाया था बेटा होगा, बोला मैंने तो नहीं कहा था बेटा होगा। साईं आपने फरमाया था इंशाअल्लाह, फरमाया हाँ इंशाअल्लाह कहा था। साईं इंशाअल्लाह जाने तुम जानो, मुझे तो इतना याद है बेटा होगा, मुझे क्या पता इंशाअल्लाह क्या है। साईं मैंने कोच वालों को बताया, लोग कहेंगे मुरीद झूठा, पीर झूठा। साईं आपकी इज्जत का मामला है। बच्ची को सुना के जाने लगा तो मेरे गौस पाक ने बच्ची को उठा के फरमाया ओ फकीर ये बेटी नहीं है, ये बेटा है। जिनको बेटे चाहिए जरा कह दो सुभान अल्लाह। जो बेटों की सलामती चाहते कह दो सुभान अल्लाह। जो औलाद की सलामती चाहते कह दो सुभान अल्लाह। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। फरमाया बेटा है, ले जा। नाम भी रखा शहाबुद्दीन, दीन को चमकाने वाला। शेख शहाबुद्दीन का सीना औरतों की तरह उभरा हुआ, उनकी नस्ल का भी उभरा हुआ। फरमाया लड़का है, दीन को चमकाने वाला शेख शहाबुद्दीन उमर सोरवर्दी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हैं। चारों यार आ गए, चारों यार, जरा जोर से बोलो चारों यार, चारों दोस्त आ गए। साईं साईं हम हाजिर। कैसे आए हो? साईं मुझे चाहिए गौसियत, मुझे गौस बना दो। आपका नाम क्या है?
साईं बहाउद्दीन कहां से आए हो? मुल्तान शरीफ से आए हो। फरमाया जाओ मुल्तान की सरजमीन पे कदम रखोगे, पहला शख्स मिलेगा कहेगा हो सुभान अल्लाह। तुम्हें गौसियत मिल गई। आप कौन है? सही मेरा नाम है उस्मान मरवंदी। उस्मान सुन्नियों के नाम होते हैं, तीसरी कंपनी के नहीं होते। किनका नाम होता है? उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाह। कहां से आए हो? सही सहमत से आए। क्या चाहिए? सही कलंदरी चाहिए। फरमाया जाओ सहमन शरीफ की सरजमीन पे कदम रखोगे, पहला शख्स मिलेगा कहेगा नाम शहबाज कलंदर। कह दो सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। नाम शहबाज कलंदर, समझ लेना कलंदरी मिल गई। आप कौन हो? साईं मेरा नाम है फरीदुद्दीन। कहां से आए हो? साईं अजूदर से आए हो। अजूदर पाक पतन। क्या चाहिए? हजूर कुतुबियत चाहिए। फरमाया जाओ पाक पतन शरीफ की सरजमीन पर कदम रखोगे, जो पहला शख्स मिलेगा कहेगा हक फरीद कुतुब फरीद, हक फरीद कुतुब। समझ लेना कुतुबियत मिल गई, तीन को खैरात मिल गई। मेरा दिल चाहता है हमें भी मिलेगी, हमें भी मिलेगी। झोली मुंजी आए खाली, झोली भर या रसूल अल्लाह। हमें भी मिलेगी। सवाली बन के आए हैं, भिखारी बन के आए हैं, मंगते बन के आए हैं, आहले बैत के दरवाजे के गदा बन के आए हैं। इंशाअल्लाह बीबी फातिमा की चादर का सदका आज कोई खाली नहीं जाएगा। कह दो सुभान अल्लाह। आज कोई खाली। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। अल्लाह अकबर। सारे गर्दन झुका के बैठे हैं। आखिरी शख्स ने मांगे ही नहीं, उन्होंने पूछे ही नहीं। मुराकबे में सारे मिलकर कह दो अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा। जमीन के सगले गवाह होता है, सारे मिलकर कह दो ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा। अल्लाह अकबर। थोड़ी देर गुजरी, शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी गर्दन मुबारक झुका के मुराकबे में बैठे हैं। एक फकीर खड़ा होकर कहता है साईं साईं मैं भी मंगता बन के आया हूं, मैं भी सवाली बन के आया हूं, क्या चाहिए? साईं मुझे इश्क रसूल चाहिए। ये कुर्बानी, आराम की कुर्बानी, पैसे की कुर्बानी, वक्त की कुर्बानी, नींद की कुर्बानी। दुआ करो मदीने वाले घोट की बारगाह में कबूल हो जाए, पंतन पाक की बारगाह में कबूल हो जाए, दम दस्तगीर की बारगाह में कबूल हो जाए। अल्लाह अकबर। साईं इश्क रसूल चाहिए। नारा बुलंद किया, सारे बेहोश हो गए। जब होश आया तो शेख शहाबुद्दीन ने फरमाया ओ दुर्वेश, इश्क लेना है तो करबला वालों से जाके, करबला वालों से जदों इश्क हकीकी हो जावे घर बार लुटाना पैंदा है। जदों इश्क हकीकी हो जावे घर बार लुटाना पैंदा है। एक यार नूं राजी करन दे लई बच्चियां नूं कुहाना पैंदा है। बच्चियां नूं कुहाना, मदीना छोड़ना पड़ता है, मक्का छोड़ना पड़ता है, करबला में खैमे लगाने पड़ते हैं। कि 8 दिन हज है, दुनिया हज करने आ रही है, मेरे नबी के जिगर का टुकड़ा दीन बचाने का। हुसैन कल का दिन रुक जाओ, हज का दिन है। फरमाया तुम काबे का तवाफ करना, मैं नबी की शहजादियों के खेमों के चक्कर लगाऊंगा। तुम आबे जमजम पीना, मैं अली असगर को हाथों में कुर्बान करूंगा। तो जमीन हक शरीफ के सामने सजदे करना, मैं तलवारों तीरों भालों के साए में सजदा करूं। जिसकी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाद है, जिस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाद है, सजदे
سجدے تو سب نے کیے پر تیرا نیا انداز ہے، تو نے سجدہ وہ کیا جس پر خدا کو بتاؤ دہشت گردی کے خلاف لڑنا چاہتے ہو یا نہیں؟ بولو، امن چاہتے ہو یا نہیں؟ پاکستان میں امن و سلامتی چاہتے ہو یا نہیں؟ تو پھر وعدہ کرو اذان سن کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، نماز پڑھیں گے، آپ اللہ کے گھروں کو آباد کرو، امن آ جائے گا، سلامتی آ جائے گی، دہشت گردی ختم ہو جائے گی اور ہر گھر سے آواز آئے گی لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ خود بھی نماز پڑھو، بچوں کو نماز پڑھاؤ، گھر کی خواتین کو پردے کی تلقین کرو، حرام سے بچو، جھوٹ سے بچو، غیبت سے بچو، بدکاری سے بچو۔ اللہ اکبر۔ کیا بتاؤں کیا حضرت سائیں شیر محمد شرک پوری کا ایک مرید تھا، کسی عورت کو دل دے بیٹھا، گندی عورت کے دروازے پہ رات کو جاتا ہے، صبح مرشد کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، رات کو جب جاتا ہے تو گلی کے دروازے پہ شیر بیٹھا ہے، واپس آ جاتا ہے، صبح گندی عورت کہتی ہے تو آیا نہیں؟ بولا میں تو آیا تھا، شیر بیٹھا ہوا تھا۔ پھر دوسری رات آیا شیر، تیسری رات آیا شیر، جمعے کا دن آ گیا، میاں شیر محمد مصلی پہ آئے، کہنے لگے لوگوں تمہارا ایمان بچانے کے لیے کبھی شیر بھی بننا پڑتا ہے۔ مزہ نہیں آیا سبحان اللہ کا؟ مزہ نہیں آیا سبحان اللہ کا؟ مالی باغ دی راکھی کر دے، پھل کچے ہون یا پکے، مالی باغ دی راکھی کر دے، پھل کچے ہون یا پکے، پیر مریداں دے سر تے رہندے بھاویں جھوٹے ہون، مرشد کی نگاہ میں ہو، مرشد کا کرم ہے، مرشد کا فیضان ہے۔ جب ہم پٹڑی سے اترتے ہیں تو مرشد کا دل دکھتا ہے۔ آؤ اپنے چہروں پر سنت رسول سجاؤ، نماز کی پابندی کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کے گھروں کو آباد کرو۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا سے محبت کرنے والوں، فرمایا عشق ہے تو کربلا والوں سے لو، عشق لینا ہے تو اویس کرنی سے لو۔ کس سے لو؟ اویس کرنی سے۔ آؤ یہ عشق کی خیرات لینی ہے تو مرشد کی بارگاہ سے لو۔ کبھی ان سے دولت نہ مانگنا، کبھی ان سے دنیا نہ مانگنا، ان سے مانگنا ہے تو خدا مانگنا، خدا کا رسول مانگنا۔ خدا مل گیا، دنیا مل گئی، رسول مل گیا، کائنات مل گئی۔ ایک اللہ کا بندہ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے سائیں شادی ہو جائے، کوئی کہتا ہے مال مل جائے، کوئی کہتا ہے نوکری مل جائے، کوئی کہتا ہے دولت مل جائے، کوئی کہتا ہے زمین مل جائے۔ آج تک کوئی نہیں آیا جو کہتا ہے مجھے اللہ ملا دو، اللہ کی معرفت عطا کر دو۔ مرشد کی چوکھٹ پہ آؤ، مرشد سے پیار کرو تو مرشد سے کہہ دو سائیں مجھے اللہ کی معرفت عطا کرو، مدینے والے گھوٹ کو عشق ادا کرو، تیرا قدم آگے بڑھے گا، مدینے والا گھوٹ دیدار کرا دے گا۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو، ہم دعا کر چلے۔ ایک نعرہ لگا دو، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مزہ نہیں آیا، نعرہ تکبیر، دائیں بائیں بولو نعرہ تکبیر۔ لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم دیتا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔